Hello students, welcome to our LRNR classes. I am Malti, your English teacher. Today I am going to teach you a poem. The name of the poem is The Solitary Reaper. ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଦ ସଲିଟାରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What is the meaning of solitary? Solitary means alone, ଏକାକୀ. Reaper means ଯେ କି ଶସ୍ୟ କାଟିବ. Here the poet is mentioned the solitary reaper. यार अर्थ होची एकाकी कटाली. So this poem is written by William Wordsworth and he was born on 7th April 1770 and died in 23rd April 1850. Before we go through the particular poem, now let's talk about विलियम वर्ड्सवर्थ. आसंतु जानिबा विलियम वर्ड्सवर्थ विषय रे. ही वाज बोर्न इन कुकरमाउथ इन लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड. से कोटी जन्म ग्रहण करथिले इंग्लैंड रो कुकरमाउथ रे जन्म होइतिले. ही वाज बोर्न इन कुकरमाउथ इन लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड. बुझा पड़छि पिला माने. नाउ he is regarded as a worshipper of nature. विलियम वर्ड्सवर्थ जणे प्रकृतिर पूजक थिले. he was a worshipper of nature. यार अर्थ होची प्रकृतिर पूजक थिले. and love of nature is a major theme of his poetry. जे कौन सी विषय जदि से लिखंती ताहेले से नेचर को मस्ट से इंक्लूड करिथिबे. so that's why we call him as a lover of nature. William Wordsworth is called as lover of nature. से जने प्रकृतिर प्रेमी बोली कहा जाए विलियम वर्ड्सवर्थ को. So he wrote about ordinary men and women in the language of ordinary people. से साधारण भाषा रे साधारण मनुष्य मानक भाषा रे से लिखुतिले. जे हो मनुष्य हो कि स्त्री हो कि जेकोसी विषय हो से ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन को नहीं कि से कॉमन लैंग्वेज यूज करी से तांकर कविता गुड़ को लेखुतिले. अकॉर्डिंग टू हिम जदि तांकर अनुसार जदि आमे देखिबा पोएटंक अनुसार जदि देखिबा द विलियम वर्ड्सवर्थ कहउचंती spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotion recollected in tranquility. जदि आमे विलियम वर्ड्सवर्थ अनुसार देखिबा पोएम कहा को कहा जाए ताहले spontaneous overflow of powerful feelings. यार अर्थ होची spontaneous होची धारावाहिक, overflow होची उचुड़ी उठिबा आ पावरफुल फिलिंग्स निजर पावरफुल फिलिंग्स रो उचुड़ी उठिबा आउ रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी. रिकलेक्टेड होची स्मरण करिबा आउ ट्रांक्विलिटी होची प्रशांति भावरे. यार अर्थ प्रशांति भावरे आमे जहाँ सब आमे स्मरण करी निजर पावरफुल फिलिंग्स रो आमे जदि ओवरफ्लो करिबा ताहेले पोएटंक अनुसार द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स arising from emotion recollected in tranquility. So my dear students, ये होची ताहंकर कविंक अनुसार पद्य कहा को कहा जाए. सो जदि आमे देखिबा ताहंकर लेखा गुड़ाक well known poems. If we talk about well known poems of William Wordsworth, let us see. First one is The Prelude, second Tintin Away, third Daffodils, fourth London 1802, fifth A Slumber Did My Spirit Seal, sixth Lyrical Ballad, and the finally The Solitary Reaper.
which we are going to learn today. My dear students, we are going to learn poem The Solitary Reaper. Now let's see stanza wise. So my dear students, now come to the poem The Solitary Reaper. पिला माने जानिच आर पछर कारण मु किछि कहबा पई जाउची. द सॉलिटरी रिपर लिखिथिले गोटे जागा को जाई से इंस्पायर हेथिले एंड विलियम वर्ड्सवर्थ आउ तांको भौणी धरती वर्ड्सवर्थ से माने 1803 रे से स्कॉटलैंड को जाइतिले आओ सेटर किछि इंस्पायर पाई 1805 रे विलियम वर्ड्सवर्थ ए पोएम को लिखिथिले एंड फाइनली दिस पोएम वाज पब्लिश्ड in 1807. My dear students, William Wordsworth and his sister, they went to Scotland for wander in 1803 and getting some inspired from the Scotland, William Wordsworth wrote this poem in 1805 and it was published in 1807. My dear students, ए पोएम को गोटे बालाड आकार रे से लिखा जाइछि. This poem is written as a ballad form. What is the meaning of ballad, you know? A ballad is a romantic poetry which tells a story. My dear students, The Solitary Reaper, this poem is written as the ballad form. What is the meaning of ballad? Ballad means a romantic poetry which is tells a story. Ballad होची गुटिए romantic poetry क्यों song जहाँकि गोटे स्टोरी को से दर्शाइब ताहाको आमे कहबा दि बालाड फॉर्म. ठीक से परि भाव में द सॉलिटरी रिपर रे मध्य विलियम वर्ड्सवर्थ गोटे स्टोरी को गोटे पोएम आकार रे से लिखिछंती. सो इफ यू सी इन फर्स्ट स्टांजा, behold here single in the field yon solitary highland lass riffing and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she courts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh listen, for the bell profound is overflowing with the sound. My dear students, in first stanza, poet is saying, behold her. It means look at her. से झियो को तुम्हें देखो. सिंगल इन द फील्ड, से एकाकी गोटे क्षेत्र अच्छी. इट मीन्स द पोएट इज सजेस्ट अस टू इमेजिन, बिहोल्ड हेयर, लुक एट हेयर, सिंगल इन द फील्ड, से एकाकी क्षेत्र अच्छी. यन सॉलिटरी हाईलैंड लास. यन मीन्स ओल्ड लैंग्वेज रे यूज करा जाय छेडा. यन मीन्स यंडर, YONDER, यंडर को यन कहबे. इट मीन्स दे आर. यन सॉलिटरी हाईलैंड लास. सॉलिटरी मीन्स एकाकी, हाईलैंड लास. लास को आमे कहबा पोएट सजेस्ट करचंते आ लिखिचंती. लास रो मीनिंग होची ए गर्ल, ए मेडन गर्ल को लास बाबर से यूज करचंती. इट मीन्स यन सॉलिटरी हाईलैंड लास, एकाकी से पहाड़िया अंचलर से गर्ल कि मेडन गर्ल को कहा जाउची. देखो से झील को एकाकी क्षेत्र अच्छी. से कौटी अच्छी? गोटे पहाड़ी अंचल से अच्छी. कौटी को? पहाड़ी अंचल अच्छी. आउ केते जण अछंती ता सहित? नो, सी इज एलोन, सॉलिटरी, रिफिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. आउ से कौन करुची?
से शस्य को काटुची शस्य को काटुची आउ से निजे निजे गीत गाउची स्टॉप हियर और जेंटली फास्ट आउ हियर द पोएट इज सेइंग दैट टू रीडर्स स्टॉप हियर से कहा को कहउचंती रही जाओ बोली जो माने एई पोएम को पढुछंती जो माने पोएम को देखुछंती दोज हु आर रीडिंग दिस पोएम द पोएट इज सेइंग टू देम स्टॉप हियर और जेंटली फास्ट इट मीन्स don't disturb to the girl because she is riffing and singing by herself she is alone in the field don't disturb her it means he is saying that the William Wordsworth is saying that don't disturb to the girl because she is riffing and singing alone in the field से एकाकी शस्य काटुची ताको तुम डिस्टर्ब करो नाही जदि हुए तो अच्छो बोले तुम सेटा रही जाओ और से कौन गीत गाउची और किपरि भाव से रिफिंग करुची तुम्हें रही जाओ नहेले तुम्हें धीरे चली जाओ अदरवाइज यू जेंटली फास्ट नाउ एलोन सी कोट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एलोन मीन्स एकाकी सी कोट्स बाइंड्स द ग्रेन कोट कहले काटिबा आउ बाइंड्स कहले बांधिबा आउ ग्रेन कहले शस्य से एकाकी कौन करुची शस्य को काटुची आउ से बांधुची एंड सिंग्स ए मेलांचोली स्ट्रेन स्ट्रेन मीन्स ए सॉन्ग मेलांचोली मीन्स दुख भरा सॉन्ग आउ से निजे निजे शस्य को काटी काटी कौन करुची मेलांचोली गीत गाउची मेलांचोली मीन्स अ सैड सॉन्ग दुख भरा सॉन्ग स्ट्रेन मीन्स सॉन्ग ओ लिसन पुणी तोरे पोइट कहउछंती टू द रीडर्स ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड वेल मीन्स वैली VALLY वैली उपत्यका एंड प्रोफाउंड प्रोफाउंड होची और द वाइड व्यू ऑफ द नेचर इन हाईलैंड लास्ट सो ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड Here, the poet is saying that all the panoramic view of the Scotland is overflowing with the sound. कहर sound द्वारा से overflow हो जाउची the girl sound, the singing sound of the girl. It means ए स्टांजा रे poet कहबा पई चाहुचंती तमे इमेजिन करो तमे चिंता करो से जियो एकाकी क्षेत्र अच्छी आउ से शस्य को काटुची आ बांधुची आ ता सहित दुख भरा सॉन्ग को से गीत गाउची तमे हुए तो सेटारे तुमे रही जाओ से गीत को तुमे सुनो और ताहा को तुमे देखो नहिले तुमे डिस्टर्ब न करके धीरे चली जाओ द पोएट इज सेइंग दैट नाउ कम टू सेकंड स्टांजा नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट्स of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. My dear students, in this stanza, the poet is saying that no nightingale did ever chaunt. Chaunt means sing. Chaunt ortho gito gaiba. नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट नाइटिंगेल पक्षी मध्य ए झियो भलिया से गीत गाई पारिबो नाही मोर वेलकम नोट्स इन द वेरी वंड्स ऑफ ट्रैवलर इन द सम सेडी हाउंड एमंग द एराबियन सैंड्स मरु अंचल रे जो सेडी हाउंड अछि सेडी हाउंड मीन्स गोटे आश्रय स्थल क्लांत हो जाइतिबा अनेक लोक आश्रय स्थल रे बसंती से समय रे नाइटिंगेल गीत गाई से मानक वेलकम नोट्स जनाउची व्हेन द टायर्ड पर्सन्स द टायर्ड पीपल दे रेस्ट in the shady haunt at that time the nightingale chants nightingale sings a song more welcome notes a voice so thrilling never was heard thrilling means excitement कि कोयलीर स्वर
बसंत ऋतु रे केते सुंदर भाव एक्साइटमेंट होइतिबो मात्र से कोइलर स्वर मध्य झीर स्वर सहित से किछि करि पारु नाही ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हेब्रिड्स कहले द्वीप समूह रे जो द्वीप समूह रे जो लोक माने बासबास करती आ द्वीप चारिपकरे जो समुद्र अच्छी से समुद्रर ढेउर साउंड्स को मध्य से भांगी दउची ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हेब्रिड्स यार अर्थ ए स्टांजा रे इन दिस स्टांजा द पोएट इज सेइंग दैट नो नाइटेंगल एंड कुकोबार्ड कंपैरिजन करिसंती नाइटेंगल मध्य से झीर स्वर सहित पारु नाही आउ कोइलीर स्वर मध्य से झीर सहित से तुलना करि पारु नाही जेमिति कि द ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी एमंग द फारदेस्ट ऑफ द हेब्रिड्स आउरी से तार ढेउर शब्द को मध्य से भांगी देउची Dear students, I hope you understand these lines. So my dear students, now come to third stanza. Third stanza, will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, par of things and battles long ago, or is it some more humbly the familiar matter of today? Some natural sorrows, loss or pain that has been and may be again. My dear students, in this stanza, poet is saying that will no one tell me what she sings? केही मते कहबोनी कि से कौन गीत गाउची कि प्रकार गीत गाउची को विषय रे गाउची Perhaps बोध हुए the plaintive numbers flow. Plaintive numbers means the sorrowful number. दुखद गीत में भी गाउथुबो से पर ओल्ड अनहाफी पार ऑफ थिंग्स हुई तो पुराना कालर जिनस को मन पकईब ओल्ड मीन्स पुराना अनहापी जोटा कि खुशी नुहे से विषय गाउथुबो नहेले पार ऑफ थिंग्स अनेक दूर रे थिबा गोटे जिनिस को मन पकाय हुए तो गाउथुबो एंड बैटल्स लॉन्ग एगो केबा अनेक कालर गटिथिबा से युद्ध मध्यरे से युद्ध विषय रे भाबी से गीत गाउथुबो और किंबा इज इट सम मोर हम्बलले किंबा ए गीत साधारण गीत होइथिबो और फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे आजिकाली रो गीत होइथिबो से ताहा भाबी कि से चिंता करी से गीत गाउथुबो सम नेचुरल सरो साधारण दुख होइथिबो नहेले लॉस कि तार किछि क्षति हो जाइथिबो और पेन कि तार किछि कष्ट लागुथिबो दैट्स व्हाई शी इज सिंगिंग दैट हैज बीन ताहा अछि और मे बी अगेन कि पुनर्बार सेटा घटिबो इट मीन्स इन दिस स्टांजा द पोएट इज सेइंग दैट व्हाट शी सिंग्स दैट गर्ल he did not understand the language से तारो गीत गाइबार से लैंग्वेज को से जानी पारु नाहांती कु गीत रे कु लैंग्वेज रे से गीत गाउछि बिकॉज दैट गर्ल वाज ए रस्टिक गर्ल से झियो से गाउणी झियो थिला सेति बाय से गाउणी भाषा रे से गीत गाउथिला शी वाज सिंगिंग विथ ए रस्टिक लैंग्वेज दैट्स व्हाई मे बी द विलियम वर्ड्सवर्थ ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द गर्ल्स लैंग्वेज से झींकर गीत को से बुझी पारु नाहांती सितिपाई से मने करुछंती हुए तो से दुख भरा से गीत गाउथुबो मे बी सी इज सिंगिंग ए सोरोफुल सॉन्ग मे बी इट मे बी ए ओल्ड मेमोरीज इट मे बी ए अनहैप्पी इट मे बी ए पार ऑफ थिंग्स और इट मे बी ए बैटल लॉन्ग एगो पोएट इज थिंकिंग अबाउट दैट और is it more humbly familiar matter of today and he is thinking that no this poem may be the familiar matter of today some natural sorrow it may be a the song of natural sorrow or it may be a song of loss or it may be a song of pain or that has been and may be again poet चिंता करुछंती अनेक विषय रे से गीत गाउची
हेले से कि प्रकार गीत से बुझी पारु ना बिकॉज द गर्ल वाज सिंगिंग. नाउ कम टू fourth stanza. My dear students, here it is written whatever the theme जहाँ भी हो ना कहीं की. The maiden girl means unmarried girl. The unmarried girl जो गीत गाउछि से थीम जहाँ हो ना कहीं की. As if here song could have no ending. ए गीतर शेष नहीं, ए गीतर अंत नहीं. No ending. It means such a beautiful song. I saw her singing at her work. मु तांकु देखिली से क्षेत्र रहीकि से गीत गाउथिला. एंड ओवर द सिकल बेंडिंग आउ से कौन करुथिला से धा सहित सिकल मीन्स धा जोटा कि शस्य काटिबा पई सहाय्य करिताए. द एंड ओवर द सिकल बेंडिंग आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल. जेतेबेले से धा सहित काटुथिला शस्य काटुथिला सेतेबेले आई लिसन्ड कहले मु तांको गीत को मु शुणिली. आउ मोशनलेस मु जाई पारिला ना आगो कि बा पछरे मु जाई पारली ना मु गोटे जगार रही गली. मोशनलेस एंड स्टिल मु अछि. एंड एज आई मोटेड ऑफ द हिल जेतेबेले मु से पहाड़ को चढ़ी चढ़ी जाउछि द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर. से गीत को से स्वर को मो हृदय रखिदेली मो अंतर रखिदेली. कहीं लंग आफ्टर इट वाज हियर नो मोर. हुए तो मु अनेक दिन पर ए प्रकार गीत को मु शुणी पारिबी नाही. अनेक दिन पर मु ए गीत को मु पाई पारिबी ना बोली से जो गीत गाउथिला से झियो से स्वर को से शब्द को से तांको हृदय रखिदेले. माय डियर स्टूडेंट्स, यह आमको सूचाई दउची जे कि गोटे एकाकी कोटाली गाँवली झील स्कॉटलैंड रे कि प्रकार तार लाइफ को अतिवाहित करुच्ची. द लाइफ रस्टिक लाइफ एंड अर्बान लाइफ एटारे पॉइंट से इमेजिन करने कही. कारण द पोएट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द गर्ल बिकॉज व्हाट शी सिंग्स से कौन गीत गाउची से जानी पारु नाहांती. बिकॉज the poet, the William Wordsworth, belongs to urban society and that girl was the rural society. She was singing with rustic language, the common man's language. That's why the William Wordsworth, he is unable to understand the girl's language. My dear students, in this poem, the poet has depicted very wonderfully. I hope you all understand this poem. So my dear students, we will meet in next video with a new chapter. Thank you.